تو جو نبیوں میں شان ہمارے آقا کو عطا کی گئی ہے وہ ولیوں میں شان سرکار غوث اعظم کو عطا کی گئی ہے۔ کوئی بھی ولی ہو آپ کے نیچے ہی ہے وہ، کیوں؟ کیونکہ اعلان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے کسی کو نہیں تھا بلکہ سرکار غوث اعظم کو تھا۔ قدمی حاذی علی رقبۃ من کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کا مہینہ، شاعر فرماتے ہیں کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کہ خود کرنے طواف آیا ہے کعبہ غوث اعظم کا، کہ خود کرنے طواف آیا ہے کعبہ غوث اعظم کا۔ خدا کا ہر ولی، خدا کا ہر ولی عظمت کی ایک مینار ہے بے شک، خدا کا ہر ولی عظمت کے ایک مینار ہے بے شک، مگر سب سے بلندی پر ہے تارا غوث اعظم کا، مگر سب سے بلندی پر ہے تارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں میں تو پاپی ہوں مجھے دوزخ میں مت ڈالو، فرشتوں میں تو پاپی ہوں مجھے دوزخ میں مت ڈالو، میرے ہاتھوں میں ہے دیکھو وسیلہ غوث اعظم کا، میرے ہاتھوں میں ہے دیکھو وسیلہ، میرے ہاتھوں میں دیکھو ہے وسیلہ غوث اعظم کا۔ اور سوال قبر کرنے جب نکیرین آئیں گے عامر، میرے برادر کبیر برادر اکبر فرماتے ہیں سوال قبر کرنے جب نکیرین آئیں گے عامر، کھڑا ہو جاؤں گا لے کر میں شجرہ غوث اعظم کا، سوال قبر کرنے جب نکیرین آئیں گے عامر، کھڑا ہو جاؤں گا لے کر میں شجرہ، مگر سب سے بلندی پر ہے تارا غوث اعظم کا۔ سرکار غوث اعظم کی جتنی بھی شان بیان کی جائے تو سمجھ لیجیے معاملہ ان کی شان و عظمت کا یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر سورج کو کوئی چراغ لے کر روشنی دکھائے، سمجھ رہے نا، تو کیا فرق پڑے گا بھائی، کچھ ہو جائے گا، وہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے، جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے حبیب سرور کائنات فخر موجودات شافع محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو نبیوں میں ہے، کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو ایک سے زیادہ دیے، لیکن مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو جو نبیوں میں شان ہمارے آقا کو عطا کی گئی ہے وہ ولیوں میں شان سرکار غوث اعظم کو عطا کی گئی ہے۔ کوئی بھی ولی ہو آپ کے نیچے ہی ہے وہ، کیوں؟ کیونکہ اعلان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے کسی کو نہیں تھا بلکہ سرکار غوث اعظم کو تھا۔ قدمی حاذی علی رقبۃ من کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ شان ایسے نہ ملی، جبکہ معراج کی رات میرے آقا سید کائنات جب چلے معراج میں تو رف رف آئی، رف رف خوش ہوا کہ آقا اپنا قدم ناز میرے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، تو خوشی کے مارے وہ اچھلا اونچا ہو گیا۔ میرے آقا کو تھوڑی سی تکلیف کا احساس ہوا تو فوراً ایک کاندھا آگے بڑھا، ایک کاندھا آگے بڑھا، میرے آقا نے اس کاندھے پر اپنا قدم رکھا، اس میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مولا یہ کاندھا کس کا ہے جس سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ کی نسل میں ایک بیٹا ہوگا جسے عبد القادر جیلانی کہا جائے گا، یہ اس کا قدم ہے۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کو شان نبیوں میں عطا کی ہے، ولیوں میں عبد القادر کو ہم عطا کریں گے۔ کیسی شان ہے، چھوٹے ہیں ابھی عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز ہے اے عبد القادر تمہیں مقام عاشقی چاہیے کہ مقام معشوقی چاہیے؟ آگے والدہ کے پاس، والدہ ایک آواز آئی ہے کہ عبد القادر تمہیں عاشقی چاہیے یا مقام معشوقی چاہیے؟ والدہ نے غور کیا، پھر کہا بیٹا اب اگر آواز دوبارہ آئے تو کہنا مجھے معشوقی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عاشق کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے معشوق کو چاہا کرتا ہے، یعنی معشوق کے نخرے کون اٹھاتا ہے؟ بولو یار، ہاں
माशूक के नखरे आशिक उठाया करता है तो उठाने वाले को परेशानी हुआ करती है, लेकिन जिसको उठाए जाते हैं उसकी परेशानी, जिसके उठाए जाते हैं नखरे उसको परेशानी। तो बेटा तुम कह देना माशूकी चाहिए है, इसमें तकलीफ कम है, आशिकी में परेशानियां ज्यादा हैं। माँ की बात मान ली, अल्लाह अकबर, खुदा को नवाजना था। फिर गैब से आवाज आई, जब आप चले तो आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर मकाम आशिकी चाहिए या माशूकी? आशिकी चाहिए या माशूकी? कहा, माँ ने कहा है आशिकी चाहिए, माशूकी चाहिए। गैब से आवाज आई, सुनो तुमने माँ का कहा माना, मैंने तुम्हें मकाम माशूकी अता की, लेकिन अपनी तरफ से मकाम आशिकी भी अता करता हूँ। मकाम आशिकी भी अब्दुल कादिर जिलानी को अता की गई है, मकाम माशूकी भी अब्दुल कादिर जिलानी को अता की गई है। हमारा वली ऐसा वली है, बड़ा इख्तियार वली है। और आप सोच रहे होंगे, अगर किसी के जहन में ये ख्याल आए कि जब देखो अल्लाह वालों का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, है ना, जहन में ख्याल आ सकता है ना भाई, अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल है। तो सुनो, जो मैंने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, युज़करूना बिज़िक्री, जब उनका जिक्र किया जाता है, यानी अल्लाह वालों का जिक्र किया जाता है, तो जिक्री मेरा जिक्र हो जाता है। मर्तबा खुदा अपने वलियों का बढ़ा रहा है। युज़करूना बिज़िक्री, जब उनका जिक्र होता है तो मेरा जिक्र बन जाता है। व उज़करू बिज़िक्रिहिम, और जब मेरा जिक्र किया जाता है तो उनका जिक्र बन जाता है। पता चला तो खुदा का जिक्र करेंगे तो अल्लाह वालों का जिक्र हो जाएगा, जब अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे तो खुदा का जिक्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही? सरकार गौसे अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम बड़ा बुलंदो वाला, अरफा वाला है। इनकी शान क्या बताई जाए। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह ताला है। क्या नाम है बोलिए? हज़रत अब्दुल रहमान तफसौंजी, तफसौंज के रहने वाले हैं। एक मरतबा अपने मुरीदों में बैठे हुए हैं, और जब कोई अपनों में बैठता है तो दिल की बात ज़बान पे आ जाती है ना। जब अपने अपने ही सब हों तो दिल की बात कहाँ जाती है? ज़बान पे आ जाती है। आपने फरमाया अपने मुरीदों में, इस वक्त रूए ज़मीन में मुझसे बड़ा कोई वली नहीं। क्या कहा? इस वक्त रूए ज़मीन में मुझसे बड़ा कोई वली नहीं है, जबकि सरकार गौसे आज़म ज़ाहिरी हयात में मौजूद हैं। दुनिया में आप तशरीफ़ फरमा हैं, बगदाद की सरजमीन पर आप मौजूद। आपने कह दिया, किसने? हज़रत अब्दुल रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह ताला ने क्या कि मुझसे बड़ा इस वक्त रूए ज़मीन में कोई वली नहीं है। आपके मुरीदों ने सुन लिया, लेकिन उन्हीं मुरीदों के बीच में एक कादरी गुलाम बैठा था। कादरी गुलाम बैठा था, उसे कैसे पसंद आएगा कि मेरे पीर से बढ़कर कोई बताए अपने आप को। अल्लाह पर खड़ा हो गया, चादर पहने था, चादर उतारी, फेंकी और कहने लगा, सुनिए, अगर आप अपने कौल में सच्चे हैं तो आइए मुझसे मुकाबला कीजिए। अल्लाह अकबर। एक गैर आदमी एक अल्लाह के वली को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप अपने कौल में सच्चे हो तो मुझसे मुकाबला हो जाए, जबकि मेरा मानना यह है कि मेरा शायख अब्दुल कादिर सबसे बड़ा वली है, मैं कादरी गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर। जब मुरीदों के सामने उसके पीर को कोई गैर आदमी इतनी बड़ी बात कह दे, चैलेंज दे दे, तो मुरीदों को अच्छा लगेगा? अरे बोलो यार, नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हर मुरीद के लिए उसके पीर से बढ़कर कोई नहीं होता। ये नियम है, ये सिद्धांत है, ये उसूल है, ये तरीका है। सबने उसको घूर कर देखा कि मेरे पीर मुर्शिद तो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन अल्लाह के वलियों की शान दोस्तों ये होती है, सच कहते भी हैं और सच सुनने की ताकत भी रखा करते हैं। सच कहते भी हैं और सच सुनने की ताकत भी उनके पास होती है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुनो, तुम चादर ओढ़ लो, मैं तुम्हारे पीर को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, जब तुमने जिस्म से चादर हटाई है तो मैंने देख लिया है वाकई तुम्हारा पीर बड़ा है। जो मुरीद ना देख पाए, अल्लाह वाले देख लिया करते हैं ना, मुरीद ना देख पाए वाकई तुम्हारा पीर बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब तुमने चादर हटाई है तो तुम्हारे जिस्म के एक एक बाल से नूर निकल रहा है, वाकई तुम्हारा पीर बड़ा है, चादर ओढ़ लो। कादरी गुलाम जज्बात में आ चुका था, कहा हम कादरी हैं, एक बार कोई चीज अगर फेंक देते हैं तो फिर उठाते नहीं है। कहा नहीं भाई पहन लो, फिर बातें आगे होगी। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो पहन लेंगे, लेकिन गिरी हुई नहीं पहनी। वहीं खड़ा है,
तफसौन की सरजमीन पे है और घर उसका न जाने कहाँ है, वहीं से अपनी खातून अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को आवाज लगाई कि फला चादर मुझे दे दो। एक हाथ बढ़ के आया, इसने अपने हाथ बढ़ाया, वहीं खड़े खड़े कहीं नहीं गया और चादर उठा ली। अब जो पीछे वाले बैठे थे, अभी तो वली ने देखी थी नूर निकलते हुए, अब समझ गए वो भी जो नीचे बैठे थे कि वाकई बड़ा है। जब इसका ये आलम है, इसका आलम नहीं, इसके घर से इसकी बीवी बढ़ाकर कपड़ा दे रही है, इसकी शान उसकी बीवी की शान, ये तो वाकई इसके वली का क्या आलम होगा, इसके पीर का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। चादर ओढ़ ली साहब, चादर आ गई। अगर यहाँ से मरियम नाके वाला का कोटला से कुछ मांगे तो जल्दी नहीं आएगा, जाना पड़ेगा। लेकिन कहा तफसौन, कहा उसका घर, वहीं बैठे बैठे वहीं खड़े खड़े मंगवा रहा है, चादर आ गई है। अल्लाह अकबर। सरकार अब्दुल रहमान तफसौंदी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने मान लिया कि तुम्हारा पीर बहुत बड़ा है, लेकिन ये बताओ, मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में रोज आता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उनकी अदालत में मेरी रोज हाजिरी होती है, लेकिन मैंने कभी न तुम्हारे पीर को आते देखा, न जाते देखा, न महफिल में देखा। अगर तुम्हारा पीर इतना बड़ा है तो कभी जाते और आते या महफिल में तो दिखाई दे। मिसाल के तौर पर कोई 5 वक्त का नमाजी हो, अगर नमाज पढ़ने वाला आदमी है तो कभी ना कभी आपको जाते देखेगा या आते देखेगा, या मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी ना। तो मैं तो रोज सरकार दो आलम की बारगाह में जाता हूँ, पता चला इससे कि आज भी नबी कायनात की महफिल सजा करती है। और ख़ास लोग होते हैं जिनको ये शरफ हासिल होता है कि अल्लाह के महबूब की बारगाह में रोज़ जाया और आया करते हैं, उनकी महफिल में बैठा करते हैं। मैं तो रोज़ जाता हूँ। लोग सोचते हैं अल्लाह वाले अपने घर में हैं, नहीं, घर में तो होते हैं, लेकिन उनकी रातें मुस्तफ़ा के कदमों में गुजरा करती हैं। तो कभी ना जाते देखा, ना कभी आते देखा, ना महफिल में देखा। अल्लाह अकबर। यहाँ बात हो रही है, मुकालमा हो रहा है तफसौंज में। ये मंजर सरकार गौसे आजम देख रहे हैं, बगदाद से देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है। मुरीद ने चादर मंगवा ली, कोई सोचे ये फर्जी बातें कर रहा है, कहने वाला कह सकता है ना। तो सरकार गौसे आजम का मुरीद है, नबी का उम्मती है। किसका उम्मती है? नबी हमारे आका से बढ़कर कोई नबी है नहीं ना। नबी का उम्मती की शान है कि एक जगह खड़े होकर दूसरी जगह से चादर मंगा रहा है, कोई मामूली बात नहीं है। कुरान पढ़ो, हजरत सुलेमान की बारगाह में हजरत आसिफ बरकिया ने वही खड़े खड़े तख्ते बिल्किस को कोसों मील से मंगवा लिया है, वही बैठे बैठे, कहीं नहीं गए। और कितनी देर में, पलक नहीं जबकि तख्ते बिल्किस आ गया। तो जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का ये आलम है, तो नबी के गुलामों की क्या शान होगी? अगर मंगवा तो कोई बड़ी बात, सब कुरान से साबित है साहब, कुरान से बाहर कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो कभी न जाते देखता है, न कभी आते देखता है, न कभी महफिल में देखता है। सरकार गौसे आजम देख रहे हैं। फौरन अपने 2 मुरीदों से कहा, जाओ फौरन तफसौन पहुंचो, मेरा मुरीद अब्दुल रहमान तफसौन जी से मुकालमा कर रहा है, उसको पूरा वाक़या बताओ। फौरन 2 मुरीद पहुंच गए। सरकार गौसे आजम पहुंचा रहे, लम्हे में पहुंच जाएंगे वो। अल्लाह अकबर। पहुंच गए साहब और कहने लगे, सुनिए हम कादरी गुलाम हैं, आप कहते हैं कि हमारा पीर न कभी सरकार की महफिल में आते देखता है, न कभी जाते देखता है, न कभी महफिल में मुलाकात होती है। तो सुनिए, फला फला तारीख को सरकार की बारगाह से आपको एक जोड़ा, एक खुल्ला दिया गया था, और उसमें किनारे में कुलवल्लाह शरीफ लिखी हुई थी। उसका कलर इस कलर का है, उसका रंग इस कलर का था। आपको मिला था कि ये नहीं मिला था? अल्लाह अकबर। हैरत में पड़ गए हजरत अब्दुल रहमान तफसौन जी। कहले बात तो सही है, चादर मिली थी, फला तारीख को मिली थी, कुलवल्लाह लिखा था, लेकिन ये बात तो मुझे मालूम, तुम कैसे बता रहे हो? ये बात तो मुझे मालूम है, तुम बता रहे हो। कहेंगे छोड़िए ये बात, ये बताइए वो हाथ, जिस हाथ ने आपको दिया था उसे जानते हैं? सुन कर कहो। कहा मिला तो था, सरकार की बारगाह से किसी ने मुझे दिया था, लेकिन सिर्फ गोरे गोरे हाथ, नूरानी हाथ दिखाई दिए थे। चेहरा जो है पर्दे के पीछे था, हाथ नजर आए थे, चेहरा पर्दे के पीछे था, चेहरा नजर ना आया। कहा सुनिए, जो गोरे गोरे हाथ देने वाले थे और चेहरे के पीछे पर्दा था, आप न देख पाए, वो किसी और का नहीं, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ थे। आपको
जोड़ा देने वाली शख्सियत कोई और नहीं थी, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ थे। और दूसरी बात, आप कहते हैं ना आते दिखते हैं, ना जाते दिखते हैं, ना महफिल में दिखते हैं, तो आते जाते तो आप हैं, क्योंकि आप दर वाले हैं, वो तो घर वाला है। आप दर वाले हैं, दर वाले आते जाते महफिल में बैठते हैं, घर वाला आता जाता नहीं, घर के अंदर रहता है। मेरा शेख 24 घंटे मुस्तफा की बारगाह में रहता है, और जो घर में रहता है दर वाले को पता नहीं होता कि घर के अंदर कौन कौन रहता है। दर वाले को पता नहीं होता कि घर के अंदर, तो मेरा शेख घर वाला है और तुम दर वाले हो। दर वाले और घर वाले में फर्क होता है, घर वाला सबको देखा करता है, दर वाला सबको नहीं देखा करता। ये है शान सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। अल्लाह तबारक व तआला हमको उनका मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।